Hello everyone, welcome to my YouTube channel Biology with Saman. I hope everyone is doing great. Before starting with today's topic, I request all my viewers to kindly please subscribe to my YouTube channel so that you never miss an update. So the topic that we are taking today is from the chapter of class 11, which is breathing and exchange of gases. The topic that we are taking today is exchange of gases, right? So whenever we use the term breathing, what we know it is the process where we take up the oxygen from the atmosphere into our body and therefore release the CO2. Why we need oxygen in order to break down the food, right? Which food? I'm talking about here glucose. So when the glucose reacts with the in presence of oxygen, it gives what? It gives carbon dioxide, water as well as energy. And thereby this byproduct that is released in this process, which is CO2, water as well as energy, the CO2 is then released out from the human body. So how does this mechanism of oxygen is getting entered into our body, into the lungs, into the blood, and how does then it is released out from the blood, then it moves into the lungs, and finally it goes out into the atmosphere. So basically we need to know what is the mechanism by which this process is taking place. So without any further delay, let's begin our today's video. Just before that, we need to fix our camera, right? This topic you have always learned right from your junior batches, junior classes, whether it is in class 9, whether it is in class 10. Definitely this is as it is class 11, so this will be a little more extra, right? And therefore it will also be accordance with the needs levels. Okay, so let's start with today's video, students. So as I said, whenever I'm talking of the exchange, right, the topic of today is exchange of gases. Which gases I'm taking about? I'm talking of oxygen as well as carbon dioxide. Definitely, I know in our atmosphere, we have oxygen, we have carbon dioxide, we have nitrogen gas, we have hydrogen gas. But for the process of breathing, we require, there is the use of only two oxygen. That is the one is the oxygen, another one is the carbon dioxide. So whenever we are talking of the exchange of gases, we take oxygen as well as the CO2. So this exchange of gases, it is based on some principle, is based on the principle of diffusion. What is a diffusion is? Diffusion, we usually say it is the movement of molecules of gases from a region of high concentration towards the region of low concentration, right? So if I'm talking of diffusion, so diffusion is based on two important diffusion, we usually see two important phenomena. The first one is in accordance with the pressure and the second one is in accordance with the concentration. As this topic, that is the exchange of gases, is basically talking of the gases, so here we will consider diffusion based on the pressure, है ना? आगे बढ़ते हैं हम लोग. तो whenever we are talking of the simple diffusion, it is based on partial pressure of gases, right? Partial pressure, always remember students, partial pressure जो है, what do you mean by, ये एक new term आ रहा है, what do you mean by partial pressure? Partial pressure एक simple term में हम बताते हैं that it is a pressure exerted by individual gas in the mixture of gases, suppose you take a container, right? And in that container we have a large number of variety of gases, right? So what is the pressure exerted by oxygen in that mixture of gases? That is denoted by the term partial pressure. ठीक है, इसको हम लोग कैसे डिनोट करते हैं पार्शियल प्रेशर को? इट इज डिनोटेड बाय लेटर स्मॉल p, राइट? सो इफ वी आर टॉकिंग ऑफ दी विथ रेस्पेक्ट टू ऑक्सीजन, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? PO2, राइट? दिस PO2, and then if we are talking of the
carbon dioxide, it is denoted by small p CO2. What more one thing you can say? What is its unit? The unit of partial pressure, it is always remember it is in mmHg, right? Mercury as well as millimeter mercury. ठीक है, ये चीज याद रखना. अब आगे बढ़ते हैं हम लोग डिफ्यूजन ऑफ गैसेस एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस के आगे. पार्शियल प्रेशर वी हैव डिस्कस्ड. So let us see on which factors does the rate of diffusion takes place. Factors affecting the rate of diffusion. Affecting rate of diffusion. Let's see what are the factors on which the rate of diffusion will depend on. ठीक है? The first factor is definitely, students, it will be solubility. Solubility means जितना ज़्यादा कोई गैस soluble होगा उतना ज़्यादा उसका rate of diffusion faster होगा. If I'm talking of the, so we can say here that solubility is what? It is directly proportional to diffusion. So if ज़्यादा soluble, that means it will be more diffusing across the membrane. So if we are taking of the carbon dioxide gas, carbon dioxide is usually 20 to 25 times more soluble than oxygen. That means carbon dioxide ज़्यादा easily solubility, ज़्यादा easily वो क्या करेगा, आराम से वो soluble है, and also thereby rate of diffusion उसका ज़्यादा high speed में होगा in comparison to oxygen. Number second हम लोग लिखते हैं, ये बहुत important है, right? We are all taking the NCERT lines. Number second is again very important. That means the second factor is definitely partial pressure. Partial pressure का मतलब क्या होगा? जहाँ पर ज़्यादा pressure होगा, मान लीजिए दो जगह है, एक एंड सिचुएशन बी, राइट? अगर ए का सिचुएशन, अगर ए का ज़्यादा प्रेशर होगा, बी का कम प्रेशर होगा, तो क्या होगा? ए से बी की तरफ मूवमेंट होगा. ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज द डिफ्यूजन विथ रिस्पेक्ट टू द पार्शियल प्रेशर, है ना? तो पार्शियल प्रेशर आपका जगह जगह पर डिफरेंट लोकेशंस में, डिफरेंट लोकेशंस और डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी में पार्शियल प्रेशर चेंज होता रहता है. हम लोग सब चीज पढ़ेंगे, राइट? Number one, the second one is the partial pressure, and number third, which is also very important, that is the thickness. So partial pressure के भी with respect to the diffusion आप क्या कर सकते हो, ये भी क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. ठीक है, थिकनेस क्या होता है? more thickness with respect to what? Their thickness with respect to thickness of membrane, you can say. ठीक है, more thickness, lesser diffusion, है ना? जितना ज्यादा थिकनेस होगा कम होगा डिफ्यूजन, है ना? ये चीज याद रखिएगा. दैट मीन्स इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द, दैट इज थिकनेस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ डिफ्यूजन. दैट यू नीड टू नो हियर. लेट्स मूव अहेड. ओके, लेट्स मूव अहेड. So suppose I'm talking of the exchange of gases. Suppose, है ना, exchange of gases usually हमारे human body में takes place in two sides. Let's say it's a very interesting thing. Please अच्छे से ये सब चीज पढ़िए. Takes place in two sides. सबसे पहला exchange कहाँ पर दिखता है? Between what we can say alveoli and between the alveoli and the capillary blood. Let's see the diagram of it. ठीक है, डायग्राम थोड़ा सा डायग्राम से ज्यादा अच्छा पता चलता है. सपोज स्टूडेंट्स, मैं ये एक डायग्राम बता रही हूं विथ रिस्पेक्ट टू द alveoli. ठीक है, यहीं पर मैं एक मेम्ब्रेन के बारे में भी बता दूंगी, विच इज कॉल्ड एज द डिफ्यूजन मेम्ब्रेन. ओके, जस्ट गिव मी अ मोमेंट. Okay, this is my what? This is my capillary. As we know that the capillary, the walls of the capillary, it is what? It is made up of endothelium. Endothelium is what? It is a simple squamous epithelial tissue. It is what? It is one cell thick, if you remember. है ना? आप पहले एक सेल बना दो. ये सेल क्या होता है स्टूडेंट्स? ये क्या है? ये है एंडोथेलियम. एंडोथेलियम अगर याद होगा आपको, इट्स अ सिंपल स्क्वामस
टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है, नंबर 1 एपिथेलियल टिश्यू। इसके अंदर आपको क्या दिखने को मिल रहा है, इसके अंदर आपको क्या दिख रहा है, इसके अंदर आपको आरबीसी दिख रही है, आरबीसी दिख रही है। आरबीसी के पास क्या प्रोटीन रहता है, हीमोग्लोबिन प्रेजेंट रहता है, एंड ऑक्सीजन बाइंड्स टू द हीमोग्लोबिन। सपोज दिस वन इज योर एल्वियोलाई। एल्वियोलाई भी अगर याद होगा, एल्वियोलाई, द वॉल्स ऑफ द एल्वियोलाई, इट इज 1 सेल थिक, ठीक है, लेट्स ड्रॉ अ वॉल ऑफ द एल्वियोलाई। इट इज व्हाट, इट इज 1 सेल थिक। ये किसका बना हुआ है, ये भी बना हुआ है सिंपल स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू का बना हुआ है, राइट। और आपको क्या याद रखना होगा यहाँ पर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको एक और चीज जरूर याद रखना पड़ेगा कि ये क्या है, ये है एल्वियोलर कैविटी, ठीक है। ये क्या है, मान लीजिए ये एटमॉस्फेयर है, बाहर की तरफ तो एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर मतलब ये तुम्हारा ये जो नॉस्ट्रियल है, इट इज एक्सपोजिंग आउट इनटू द एटमॉस्फेयर, सो इसको हम लोग इसके रिस्पेक्ट पर बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या पता है, अगर बेसिक में, अगर मैं बेसिकली मैं बताऊं तो यहाँ से क्या होता है, अब एटमॉस्फेयर, अगर ब्रीदिंग आपको फिनोमेना याद है, तो यहाँ से आप ऑक्सीजन लेते हो एंड फ्रॉम द एल्वियोलाई बाहर निकाल, रिलीज आउट करते हो कार्बन डाइऑक्साइड। आई थिंक दिस इज द बेसिक फिनोमेना दैट यू ऑल नो। एंड अगर कभी कभी क्वेश्चन आ सकता है दैट सिंपल स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू बिलोंग्स टू टाइप 1 एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। एंड दिस एरिया, दिस ब्लैंक एरिया इज कॉल्ड एज, इट इज कॉल्ड एज बेसमेंट मेम्ब्रेन, बेसमेंट मेम्ब्रेन, फाइन। बेसमेंट मेम्ब्रेन आपको बस क्या याद रखना है, बेसमेंट मेम्ब्रेन इट इज नॉन सेलुलर या ए सेलुलर, बाकी दोनों क्या है, कैपिलरी क्या है, सेलुलर होगा, एंड 1 सेल थिक इज ऑल्सो cellular, right? That means the wall of the alveoli, that means the wall of the alveoli से better होगा अगर आप ये लिखें alveolar sac, alveolar sac, ये ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। तो alveolar sac क्या होगा आपका, 1 cell thick होगा and definitely it will be cellular, and the capillary it is what, it is made up of endothelium and it will also be a cellular। तो इसी को कभी कभी हम लोग बोलते हैं, this is called as, just give me a moment, this layer is called as your diffusion membrane, डिफ्यूजन मेम्ब्रेन है ना। डिफ्यूजन मेम्ब्रेन किसका किसका बना, अगर याद है डिफ्यूजन मेम्ब्रेन किसका हम लोग, और इसका अदर नेम क्या है, रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन, रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन और डिफ्यूजन मेम्ब्रेन, ठीक है। तो ये रेस्पिरेटरी और डिफ्यूजन जो मेम्ब्रेन है स्टूडेंट्स, ओके जस्ट लेट मी मूव, ओके, ये जो डिफ्यूजन और रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन है वो किस चीज का बना है, क्या आपको दिखा, कौन कौन से 3 लेयर का बना है, इट इज ऑफ 3 लेयर्स, राइट, 3 लेयर्स, जिसमें क्या दिखा आपका, एक 2 सेलुलर है और एक नॉन सेलुलर है। सेलुलर कौन थे, सेलुलर इसमें आपका था एल्वियोलर sac wall, right, which was made up of simple squamous, क्या कौन सा टिश्यू, सिंगल स्क्वामस टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू। देन आया था बेसमेंट मेम्ब्रेन, बेसमेंट मेम्ब्रेन बीएम के नाम से आप लिखो, एंड देन वी हैव एंडोथेलियम, एंडोथेलियम किसका पार्ट है, एंडोथेलियम पार्ट है कैपिलरी का, ठीक है। क्या और चीज याद रखिएगा, याद जरूर रखिएगा कि जो डिफ्यूजन जो मेम्ब्रेन होता है इसका जो साइज है, साइज इट इज यूजुअली 0.2 to 0.3 micrometer, so we can say it is lesser than 1 micrometer, that is very important, ठीक है। साइज इज यूजुअली बिटवीन 0.2 to 0.3, आपको दिख रहा है कि यहाँ पर भी जो डिफ्यूजन मेम्ब्रेन का जो थिकनेस है वो बहुत ही कम है, राइट। तो इससे क्या होगा, रेट ऑफ डिफ्यूजन ज्यादा होगा। और क्या क्या सिग्निफिकेंस होता है इसकी रेट ऑफ डिफ्यूजन के अलावा, व्हाट आर द वी कैन से प्रॉपर्टीज ऑफ डिफ्यूजन मेम्ब्रेन, अगर कभी क्वेश्चन में ऐसा आपको दिखा तो व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ डिफ्यूजन मेम्ब्रेन, आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए, सबसे पहले तो इसके पास परमिबिलिटी होनी चाहिए, राइट। परमिबिलिटी किसकी, परमिबिलिटी होनी चाहिए, परमिबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन
as well as and CO2. Very important, right? Number second, it should be moist, must be moist, must be moist. मॉइस्ट होगा तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी. नंबर थर्ड क्या होना चाहिए? इट शुड बी वेरी इंपॉर्टेंट, इट शुड बी थिन. नंबर फोर्थ, इट शुड बी हाईली वैस्कुलर, राइट, रिचली सप्लाइड विद द ब्लड वेसल्स. वैस्कुलर बहुत जगह आप लोग टर्म सुनते हो. वैस्कुलर, दैट मीन्स इट शुड बी, what do you mean by vascular? Vascular मतलब होता है richly supplied with blood vessel, supplied with blood vessels, right? Agar, as we know that the blood vessel will have blood and the blood will have the hemoglobin present. So the hemoglobin, what it will do, it will bind with the oxygen, and also hemoglobin can also bind with the carbon dioxide. So thereby the rate of diffusion will also be fast in that case. So ये basic है properties of the diffusion membrane. तो ये था स्टूडेंट्स पहला एक्सचेंज साइट्स जहां पर आपने वेल देखा कि इसका क्या है नाम, राइट? ये जो एल्व्यूलर सैक है ना, उसके बाद क्या आता है बेसमेंट मेम्ब्रेन, इट इज नॉन सेलुलर एंड देन फॉलोड बाय द कैपिलरी व्हिच इज एंडोथेलियम. नाउ लेट्स सी द सेकंड साइट. लेट्स मूव अहेड. नंबर 2 इज द एक्सचेंज ऑफ गैस between what? Between two areas, that is between the blood and tissue. Very important it is students. यहीं पर मैं सारे पार्शियल प्रेशर का फंडामेंटल्स बता दूंगी. Just give me a moment. Okay, चलो let's begin drawing for once. Make sure that you have enough space, students. Okay. यहीं पे मैं सब चीज बता दूंगी. You can draw with me. Okay, we have completed with it. चलो स्टूडेंट्स हम लोग देखते हैं. एक बार मैं जस्ट बता देती हूँ इसका मतलब क्या हुआ, क्या चीज को क्या डिनोट कर रहा है. ये टिश्यू साइड है, ठीक है. ये कौन सा? ओके, दिस इज alveolar. We are taking a single alveolar sac. This is atmosphere, ठीक है. दिस इज योर एटमोस्फेयर. अब चलिए हम लोग लिखना स्टार्ट करते हैं. आपका एटमोस्फेयर में स्टूडेंट्स पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज वेरी हाई. व्हाट इज इट? डेफिनेटली द पार्शियल प्रेशर इज डिनोटेड बाय mmHg, है ना. तो अगर आप एटमोस्फेयर बात करें तो इसका 159 mmHg है. वही अगर मैं PCO2 बोलूं तो वहां का पार्शियल प्रेशर एटमोस्फेयर का 0.3 mm ऑफ Hg है. आई होप इट्स क्लियर. एल्व्यूलर की मैं बात कर रही हूँ तो एल्व्यूलर मान लीजिए यहाँ पर एल्व्यूलर एयर होगा, एल्व्यूलर सैक के अंदर एल्व्यूलर एयर होगा. तो यहाँ पर जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है इट इज हाउ मच? इट इज 10 यूजुअली 4 mmHg. एंड वही अगर मैं PCO2 बात करूं तो यहाँ पर कितना हो जाता है इनका mm ऑफ Hg अगर मैं बात करूं तो इट इज 40 mmHg. आई होप इट्स क्लियर.
Suppose this is my alveolar and this was my heart. Okay, this is my heart. To make it easy, I've drawn a simpler diagram. This is my heart. Okay, if you remember students, the two upper chambers are called as atria and the two lower chambers are called as ventricle, है ना? The upper chambers जो होते हैं, that is, this is your, suppose this is my right side and this is my left side of the heart, है ना? So as we know, the right atria, this is your right atria. It is taking up the deoxy blood. Okay, this is your deoxy blood. डीऑक्सी ब्लड कौन कैरी कर रहा है? डीऑक्सी ब्लड इज कैरिड बाय सिस्टमिक वेन्स. हमें पता है ना, राइट, कि वेन्स कैरी ऑल द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, बट डेफिनेटली देयर इज एक्सेप्शन टू इट. तो ये सिस्टमिक वेन जो है वो कैरी कर रहा है क्या? सारे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को फ्रॉम द बॉडी इनटू द हार्ट. दैट यू कैन सी. This is your what? This is your oxygenated blood. Oxygenated blood. Oxygenated blood. Who is carrying? It is carrying systemic artery. Systemic artery. Systemic का मतलब क्या होता है? Body, है ना? तो the body, that is the blood vessels, that is the arteries, they are carrying up the oxygenated blood from the heart to the rest part of the body, and the deoxygenated blood is carried up by the systemic vein, that is veins that carry the deoxygenated blood from the rest part of the body and send it back to the heart. Right? I hope it's clear. तो अगर आप देखना चाहते हो तो इसको आप याद रखो, डीऑक्सी ब्लड है, डीऑक्सी ब्लड है ये. और अगर हम लोग ये रेड से करें तो ये इसका क्या है? ये है एक ऑक्सी ब्लड, ऑक्सी ब्लड, है ना? सो लेट्स सी द पार्शियल प्रेशर. यहाँ पर क्या हो रहा है स्टूडेंट्स कि यहाँ पर जब हम लोग डीऑक्सी ब्लड जो हो रहा है तो यहाँ पर आपको क्या हम लोगों को दिखना पड़ रहा है कि 159 एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन ज्यादा है, एल्वुलर में एटमॉस्फेरिक या एल्वुलर में जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है वो कम है. तो क्या होगा यहाँ पर? हम लोग क्या देखेंगे स्टूडेंट्स कि यहाँ पर ऑक्सीजन की हमेशा एंट्री होगी एंड एल्वुलर सैक में आप क्या देख रहे हो? एल्वुलर डोमेन में क्या देख रहे हो कि आपका PCO2 का लेवल ज्यादा है, एटमॉस्फेयर में PCO2 का लेवल कम है. सो व्हाट इट विल डू? द CO2 विल गेट आउट फ्रॉम द बॉडी. That is the thing which is happening here, right? Suppose if I am talking of the deoxygenated blood, the deoxygenated blood, the partial pressure of oxygen is how much? It is usually 40 mmHg, whereas the PCO2 का क्या होता है? It is 45, है ना? So what we can see here that deoxy blood ये क्या कर रहा है? ये blood को एट्रिया से, ये एट्रिया है, ये है राइट वेंट्रिकल, है ना? तो ये जो डीऑक्सी ब्लड है ये कहाँ जा रहा है? फ्रॉम द एट्रिया टू द वेंट्रिकल, और फिर ये कहाँ जा रहा है? इनटू द एल्वुलस, राइट? यही क्या था? डिफ्यूजन मेम्ब्रेन था. यहाँ पर क्या हो रहा है? आपको दिखा कि ये जो ब्लड जो लेकर के आ रहा है फ्रॉम द हार्ट इनटू द लंग्स, यहाँ पर आपने देखा कि यहाँ पर PCO2 का लेवल कम है कंपेरेटिवली टू द एल्वुलर एयर. तो ये क्या होगा? PO2 क्या करेगा? अपना ऑक्सीजनेटेड ब्लड को इधर छोड़ देगा एंड जो PCO2 है, जो PCO2 का क्या था? लेवल ज्यादा है कंपेरेटिवली टू द एल्वुलर एयर. तो ये क्या करेगा? ये इसको ले लेगा. दैट मीन्स कि एंट्री किसकी हुई? ऑक्सीजन की, एंड रिलीज क्या हुआ? CO2 बाहर चला गया इनटू द एल्वुलर एयर. आई होप इट्स क्लियर. तो आप क्या बोलते हो? ऑक्सीजनेटेड ब्लड में क्या ज्यादा होता है? ऑक्सीजन ज्यादा होता है, राइट? तो ऑक्सीजन ज्यादा होगा यहाँ पर, है ना? ये क्या हुआ? ये हो गया आपका लेफ्ट एट्रियम, ये क्या हो गया? लेफ्ट वेंट्रिकल, ये हो गया वेंट्रिकल, और ये हो गया आपका एट्रियम. दैट इज द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट. तो लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट इज कैरिंग द ऑक्सीजनेटेड, वी कैन से ब्लड, है ना? एंड द राइट साइड इज कैरिंग द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. तो ये जो हो रहा है, फिर ये क्या हो रहा है? ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड आप कहाँ पर देख रहे हो? आपका बॉडी में जा रहा है. तो यहाँ पर जो सिस्टमिक जो आपका आर्टरी है, इसका लेवल क्या होता है? ये जब एक्सचेंज हो रहा है स्टूडेंट्स, दैट इज 104 जो आ रहा है, 10, दैट मीन्स द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस जब वो इंटर कर रहा है इनटू द ब्लड वेसल्स, डेफिनेटली सबसे पहले इंटर करेगा इनटू द कैपिलरी में, राइट? तो क्या होगा? कुछ अमाउंट ऑफ गैस या पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस बाहर निकल जाता है, ठीक है? तो उसका वैल्यू क्या हो जाता है? घट जाता है. तो यहाँ पर जब हम बात करते हैं, जैसे ही डिफ्यूजन के बाद, एक्सचेंज ऑफ गैस के बाद, हम जरूर बोलेंगे स्टूडेंट्स कि
यहाँ पर हम लोग क्या बोलेंगे, PO2 कितना हो गया है 95 mm ऑफ Hg, है ना, एंड PCO2 क्या हो गया है विच इज 40 mm ऑफ Hg, है ना। अब क्वेश्चन एक चीज आ सकता है यहाँ पर, देखिए स्टूडेंट्स, इफ यू रिमेंबर द राइट वेंट्रिकल is taking up the deoxygenated blood from the right side of the ventricle towards the alveoli with the help of a artery. This is called as what? This is your pulmonary artery, right? तो पल्मोनरी आर्टरी जो होगा उसका भी वैल्यू क्या होगा, सेम होगा। सेम क्या होगा, सेम विथ रिस्पेक्ट टू डीऑक्सी ब्लड, राइट, बिकॉज वही जो डीऑक्सी ब्लड जो एट्रिया में, राइट एट्रिया में इंटर किया, वही राइट वेंट्रिकल में इंटर किया, एंड देयर बाय वो इंटर मूव कर रहा है टुवर्ड्स द एल्वुलस। ठीक है, आई होप इट्स क्लियर। अब क्या हुआ यहाँ पर, दिस वन इज कॉल्ड एज योर पल्मोनरी वेन। Pulmonary vein matlab it will carry the, it's the only exception to it that carries the oxygenated blood from your lungs towards the left atrium or the left side of the human heart. So what does it do, इसका PO2 कितना होगा, इसका भी PO2 95 होगा, एंड PCO2 का वैल्यू कितना हो जाएगा 40 mm ऑफ Hg हो जाएगा। आई होप इट्स क्लियर। वैल्यूज क्यों डिक्रीज हुए, क्वेश्चन दिमाग में आ सकता है, 104 से 95 क्यों हुआ, बिकॉज कुछ अमाउंट ऑफ गैस क्या डिसअपियर हो जाता है, हम लोग कह सकते हैं वैल्यूज ऑफ द गैसेस मेक एंड डिसअपियर जब एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है ना। अब यहाँ पर मूव करने बच्चे स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखिए टिश्यू साइड में, टिश्यू साइड में क्या होता है स्टूडेंट्स, इफ यू रिमेंबर टिश्यू साइड में ए ब्रेकडाउन ऑफ द ग्लूकोज होता है। यहाँ पर टिश्यू साइड में यू यूजली सी व्हाट, इट्स अ ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज। ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज होता है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू रिलीज CO2, राइट। तो टिश्यू साइड में क्या होगा, आपका हमेशा याद रखिएगा PO2 का जो लेवल होगा वो क्या होगा स्टूडेंट्स, कम हो जाएगा, एंड PCO2 क्या हो जाएगा, इट इज 45, राइट। तो जो PO2 जो लेकर के आ रहा है फ्रॉम योर सिस्टमिक आर्टरी इनटू द टिश्यू, उसको क्या लगा कि यहाँ पर टिश्यू साइड में तो ऑक्सीजन का लेवल कम है, तो वो क्या करेगा, वाया डिफ्यूजन ऑक्सीजन को इंटर करवा देगा, ऑक्सीजन विल गेट इंटर, दैट इज ऑक्सीजन विल गेट इंटर इनटू द टिश्यू, एंड देखा क्या है उसमें कि टिश्यू साइड में कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल ज्यादा है, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस ज्यादा है कंपेरेटिवली टू द सिस्टमिक आर्टरीज का जो PCO2 है, तो ये क्या हो जाएगा, ये इंटर कर जाएगा, दैट इज CO2 की एंट्री हो जाएगी। एंड इसी तरह से हम क्या बोल सकते हैं, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होगा ऑल फ्रॉम द टिश्यू साइड, ये क्या कैरी करना स्टार्ट कर देगा, कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड को, एंड दे मूव इनटू द राइट साइड ऑफ द एट्रिया, देन इट विल मूव इनटू द राइट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, चलिए मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, दिस इज योर राइट एंड दिस इज योर लेफ्ट, है ना। तो ये जो राइट वेंट्रिकल होगा, फिर वो व्हाट विल इट डू, इट विल कैरी द pulmonary artery, what it will do, it will carry the deoxygenated blood from the right ventricle towards the lungs, है ना। अब क्वेश्चन ये भी आ सकता है स्टूडेंट्स, कभी कभी, अभी तक तो आया नहीं है, क्वेश्चन क्या आ सकता है, लेट्स सी द व्हाट आर द फ्रेमिंग ऑफ क्वेश्चंस दैट कैन कम। अगर याद होगा यही फिनोमेना, यही को हम लोग ने डिफ्यूजन मेम्ब्रेन कहा था स्टूडेंट्स, दिस वाज व्हाट वाज, अगर मैं इसको थोड़ा हटा देती हूँ थोड़ा सा और हम लोग ब्राइट करते हैं, ये वाला, यही तो आपका क्या था, यही इसी को कहते हैं हम लोग क्या, डिफ्यूजन मेम्ब्रेन या रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन, जो आपको अभी तुरंत हमने स्टार्टिंग वाली स्लाइड में दिखाया है, दिस इज कॉल्ड एज डिफ्यूजन मेम्ब्रेन, है ना। तो यहाँ पर जो एक्सचेंज ऑफ गैस हो रहा है, डेफिनेटली डिपेंड्स अपॉन द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस। जहाँ पर पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस, जिस की गैस की ज्यादा होगी, फ्रॉम द हाई कंसेंट्रेशन दे विल मूव टुवर्ड्स द लोअर कंसेंट्रेशन। अब नाउ द क्वेश्चन में आज, सपोज वी हैव अ लॉट ऑफ आर्टरीज, है ना। अगर मैं सिस्टमिक आर्टरी बात करती हूँ तो बहुत सारे आर्टरीज हैं जो सप्लाई करते हैं पर्टिकुलर टिश्यू को, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट आर्टरी, है ना। तो आर्टरी में अगर मैं बात करूँ, रेनल आर्टरी, रेनल आर्टरी इज एसोसिएटेड विद किडनी, देन वी हैव हेपेटिक आर्टरी, हेपेटिक आर्टरी इज कनेक्टेड, is associated with the liver, then we have phrenic artery, phrenic artery is related to your diaphragm, है ना। then we have a carotid artery, carotid artery is related to the artery that is supplying the blood to our head region, usually brain भी बोलते हैं इसको, पर carotid भी हो सकता है। then जो आर्म्स में जो जाता है ना, आर्म्स में जो जाता है, कभी कभी उसको हम लोग क्या कहते हैं, सबक्लैवियंस भी बोलते हैं, है ना। जो अगर मान लीजिए जो आर्टरी आपके आर्म्स में जाएगा, इसका नाम क्या होता है उस ब्लड वेसल का, सबक्लैवियन। सो व्हाट वी कैन सी, अगर यहाँ पर बोलेगा कि व्हाट इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ
partial pressure of PO2, what you will be writing systemic artery वाला होगा same. Why? Because exchange के बाद, that means exchange होने के बाद lungs से blood में वहां पर क्या हुआ students कि वो 95 हो गया था. That means the pulmonary vein is also carrying the partial pressure of oxygen to be 95 and the PCO2 to be 40. तो ये सेम रह जाएगा. It is entering into the left side of the atria, left side of the heart, which is the first one into the left atria followed by left ventricle, है ना, and then the left ventricle is carrying up to the systemic arteries. So from there only you can also understand कि questions बहुत तरह से frame हो सकते हैं. अगर मैं क्वेश्चन यहाँ पर ये पूछा जाए, अगर सबक्लेवियन वेन, अगर इफ दे आर टॉकिंग ऑफ subclavian vein, then you can say it is carrying this thing 40 as well as 45, है ना. So this was something which is very important that you all should remember. Pulmonary vein, always remember, it carries the oxygenated blood from the lungs into the left atrium. From left atrium to left ventricle it will move, and from left ventricle into the systemic artery. So this was all today with the discussion of the exchange of gas, students. It was very informative one, है ना, and I hope you liked the video. And it is something, this topic is very important. It usually comes in your NEET syllabus, and also with respect to the partial pressure of the gases always come, है ना. So you all should make it clear what are the values of the partial pressure. डेफिनेटली एक्सपायर्ड एयर का भी पार्शियल प्रेशर कुछ होता है. दैट इज इन केस ऑफ वी कैन से ऑक्सीजन, इट इज फॉर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन द एक्सपायर्ड एयर इज 120 and for the PCO2 it is 27. Why? Because some amount of, in case what is the exchange, अगर दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि हम लोग तो ले रहे हैं 159 बट एल्व्यूलर तक पहुंचते पहुंचते हो गया 104, राइट. सो सम अमाउंट ऑफ द एयर रिमेन्स इन द डेड स्पेस. डेड स्पेस मतलब क्या होता है, कुछ ऐसे वैल्यूज होते हैं ऑक्सीजन के जो दे आर नॉट टेकिंग प्लेस in the exchange process. So that is called as the dead space. So this was end of today's topic. I hope students you liked it. Please, it's a request, kindly subscribe to my YouTube channel. Do hit the subscribe button so that you never miss an update. Also like the video and share it with your friends so that they also get to know about the topic of the discussion. So thank you everyone. I'll see you in the next video.